Good morning to all of you. Today I have come up with the topic the Competition Act 2002, under which we are going to discuss the introductory part as in how this legislation came into existence. Secondly, we are going to talk about the objectives of this legislation and also the main provisions. ये पूरा का पूरा लेक्चर हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया है कि आपके लिए UGC नेट एग्ज़ाम में अपेयर करना और इस चैप्टर को डील करना थोड़ा ईजी हो जाए. So let's begin with the chapter. As you can see over here, I have provided the introductory part कि ये legislation existence में कैसे आया. तो 16 दिसंबर 2002 को लोकसभा ने एक बिल पास किया MRTP Act 1969 को रिप्लेस करने के लिए. What is this MRTP stands for? Basically monopolies and restrictive trade practices. तो MRTP Act को रिप्लेस करने के लिए 16 दिसंबर 2002 को लोकसभा ने एक बिल पास किया और ये जो लेजिस्लेशन था या जो बिल था वो इंटेंड करता था टू कर्ब द टेंडेंसी टू क्रिएट मोनोपोली इन कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री. यानी इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कॉमर्स में किसी भी तरह की मोनोपोली को क्रिएट करने की जो टेंडेंसी होती है कंपनीज़ की या ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको कर्ब करने का ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली इम्प्लाई करता था. तो ये जो बिल पास हुआ था ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से पास हुआ था? द कमेटी वाज नेम्ड एज कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ एंड विच वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री S.V.S. Raghavan. दिस एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन 13th January 2003 as an amended by Competition Amendment Bill 2007 and again in 2009. If we talk about the objectives of this legislation, तो it carries basically these objectives जो यहाँ पर आप देख सकते हैं. First one being eliminate practices having adverse effect on competition, यानी market competition पे किसी भी तरह का adverse effect डालने वाली किसी भी तरह की practice को eliminate करना. To promote and sustain competition in markets, to protect consumer interest and to ensure freedom of trade carried on by other participants in markets in India. So these are the major objectives of this legislation. Please keep in mind these objectives as in the questions which can be framed out of this chapter or this legislation are only the objectives or some important provisions only. Moving on to main provisions, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लेजिस्लेशन कुछ अग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करता है, जैसे कि जो अग्रीमेंट्स एंटी कॉम्पिटिटिव होते हैं या जो अग्रीमेंट्स डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करने के लिए होते हैं या कुछ कॉम्बिनेशंस को जो मार्केट के हेल्दी कंपटीशन को कर्ब करते हैं. सो दिस इज़ द chunk, this is the important point which you need to note down, that Competition Act prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position and combination. You can be asked in the form of MCQ कि Competition Act किन किन चीज़ों को prohibit करता है. आपको ये 3 ऑप्शंस होंगे, साथ में ऑप्शन हो सकता है none of these, साथ में ऑप्शन हो सकता है all of these. So you just you will have to take the option कि ये तीनों ही चीज़ें prohibit होती हैं Competition Act के थ्रू. अब हम सबसे पहले बात करेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की. तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका कंपटीशन पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट AAE हो वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है. कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं प्रोडक्शन या सप्लाई को लिमिट करना, मार्केट को एलोकेट करना, प्राइस को फिक्स करना, बिड रिगिंग और कल्यूसिव बिडिंग, कंडीशनल परचेज या सेल जैसे कि टाई इन अग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, refusal to deal. So these are the examples of anti-competitive practices. You might be asked the MCQ in the form ki which are the examples of anti-competitive practices. So you just need to remember the names of all these practices. सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 के 2 पार्ट्स हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. सो लेट्स सी व्हाट दी सबसेक्शन से. सबसेक्शन 1 के अंदर
No enterprise or association of enterprises or person or association of persons shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition, control of goods, provision of services. And subsection 2 says any anti-competitive agreement within the meaning of section 3 subclause 1 shall be void. यानी कि सबसेक्शन 1 के अंदर दिए हुए जितने भी क्लॉजेज हैं कि किस किस रिस्पेक्ट में एग्रीमेंट नहीं होना है, उन सब से रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव होगा और वो वॉइड होगा अंडर सेक्शन 3 सबक्लॉज 2. What is that point to be noted under this section is that कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉम्पिटिशन को कॉज करेगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट. अगर वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉम्पिटिशन पे कॉज करेगा ओनली देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. अब हम बात करेंगे अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, जो टॉक्ड अबाउट है अंडर सेक्शन 4. तो डोमिनेंस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ विच इनेबल्स एन एंटरप्राइज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस और टू अफेक्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट और द मार्केट इन इट्स फेवर. ऐसी कोई भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होना जिसकी वजह से आप ये 3 चीज़ें करें, यानी कि अपना एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली रन कर सकें या फिर कॉम्पिटिटर्स या कंज्यूमर्स को इफेक्ट कर सकें या मार्केट को अपने फेवर में कर सकें. तो उन तीनों एक्टिविटीज़ को आप अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर कंसिडर करते हो. जो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होता है ये बेसिकली फेयर कंपटीशन को इम्पीड करता है काफ़ी हद तक और कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर्स को भी एक्सप्लॉइट करता है. इट ऑल्सो मेक इट डिफ़िकल्ट for the other players to compete with the dominant undertaking or merit. Let's see what can be the examples of abuse of dominant position. Basically it includes unfair condition या prices impose करना, predatory pricing, limiting production, creating barriers to entry, denying market access, gaining advantages. So these are the examples of abuse of dominant position. अगर कोई firm किसी एक particular market में है और वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें करती है तो वो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर हेल्ड की जा सकती है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस. क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट्स और असेट्स, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन कॉम्पीटिंग बिजनेसेस, mergers, amalgamations between or amongst enterprises when the combining parties exceed the threshold set in the act. Combination in general आप इससे ये समझते हैं कि 2 enterprises का मिल जाना, उनका merger या amalgamation. So अगर वो amalgamate हो के एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं मार्केट में या कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को डील करते हैं या मर्ज होके अमेलगमेट होके अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना लेते हैं और उसे अब्यूज़ करते हैं, तो अगेन दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस those particular enterprises can be held under the Competition Act 2002. Let's talk about the Competition Commission of India because it is also a very important part as far as the examination of UGC NET is concerned because UGC NET के अंदर आपको MCQs पूछे जाते हैं और कुछ important MCQs CCI से related हो सकते हैं. Let's see them. तो सबसे पहले तो हम प्रोविजन की बात करते हैं. सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट सेज दैट एन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश अ कमीशन टू बी कॉल्ड एज CCI, that is Competition Commission of India, by issue of a notification. CCI is a body corporate. It has a perpetual succession under common seal. The commission has power to acquire, hold, movable or immovable property and to enter into contract in its name and by the said name sue or be sued. It has some quasi-judicial powers. Its orders can be challenged only in the Supreme Court. CCI का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका एक चेयरपर्सन होता है और मेंबर्स होते हैं 10, यानी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. चेयरपर्सन और मेंबर्स दोनों की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है.
अगर हम कमीशन के फंक्शंस और पावर्स और ड्यूटीज़ की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं अंडर सेक्शन 18, जिसमें से पहली है टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड. Let's talk about certain miscellaneous provisions. Section 20 says कि अगर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो कमीशन उसकी इंक्वायरी कर सकता है. सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट द मीटिंग ऑफ कमीशन, कब कहाँ कैसे मीटिंग होगी. सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट द जुरिडिक्शन ऑफ CCI टू इंक्वायर एंड पास ऑर्डर्स. CCI can lay down its own procedure and regulation. CCI may amend any of the order passed by it. यानी CCI के पास इतनी पावर्स हैं कि अगर वो अपने द्वारा पास किए हुए ऑर्डर से आगे आने वाले टाइम पे कभी कंप्लाई नहीं करता है तो उसे अमेंड भी कर सकता है. सेक्शन 39 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ रिकवरी. यानी कि अगर कोई पर्सन जिस पे मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की थी CCI ने, अगर वो उसे पे नहीं कर पाता है, इफ दैट पर्सन फेल्स टू पे सच फाइन or penalty, then CCI may recover such amount as per the regulation. There is an establishment of competition fund as well. और जो CCI है उसके जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं उसका मेंटेनेंस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के कंसल्टेशन के साथ किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. You all need to know only this much for clearing the UGC NET examination as far as this chapter is concerned. Thank you so much.